day, and we are just about to get started with the first match, Andhra Pradesh versus Uttar Pradesh. Beach Kabaddi, almost as if the EU has painted the traditional sport, the sport of the soil, in its own colors. I am Darpan Tikia, and alongside me is Sanjeev Datta. धन्यवाद दर्पण। और ये है लाइनअप जो कि आंध्र प्रदेश की जो टीम है वो आपको स्काई ब्लू वेशभूषा में दिखेगी, और ये पीली वेशभूषा में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के ये खिलाड़ी और उत्तर प्रदेश की ये खिलाड़ियों का लाइनअप जो कि यहाँ पर हमारे इस खेल कौशल को प्रस्तुत करेंगे। निखिल कुमार, अभिषेक सिंह, अंशुल, कुलतार, अश्विनी यादव और सूरज कुमार, ये ऐसे वो खिलाड़ी हैं जिसमें आपको प्रो कबड्डी में भी इनके 3 खिलाड़ी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और यहाँ पर ये है आंध्र प्रदेश की टीम। Yes, Andhra Pradesh led by Venkatesh Kayala, who's the left corner, and all the other players lined up there, touching the feet of coach K. Jagadish and getting ready to get into the court. Remember, the court is a little bit smaller than traditional kabaddi. 11 by 7 are the measurements of the court. And of course, the match officials, who are going to be very, very important. They are going to have their keen eyes on the nitty-gritties of play, and they're going to ensure that everything goes smooth. Talking about smooth things, have a look at the sand right now in this frame. The sand has been smoothened. 30 centimeters of sand beneath the feet of the players, which helps them to get impetus. And before flattening of it, it has been sifted through so that there are no shells, no stones, which could potentially hurt the players, because they're going to be barefooted for the duration of this match. बिल्कुल। और अंशुल, यहाँ पर दोनों ही कैप्टन्स को अपने सम्मुख बुला लिया गया है, और आंध्र प्रदेश की तरफ से जो कैप्टन की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं वेंकटेश कयाल, और वहीं उनके साथ उत्तर प्रदेश के जो कैप्टन हैं अभिषेक सिंह, दोनों के बीच में एक टॉस की जाएगी और ये निर्धारित किया जाएगा कि वो पहले रेड करने जाएंगे या पाला लेंगे। तो देखना होगा, यहाँ पर ये सुनिश्चित करता है दोनों ही कैप्टन्स के ऊपर। और अगर हम बात करें अंशुल, अगर हम दर्पण अगर हम बात करें यहाँ पर कल के मैचों की, तो ये दोनों ही टीमें अपना एक मैच पास हो चुकी हैं। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की टीम की बात करें तो वो हरियाणा से हारी थी, 16-53 अंकों से हारी थी, और वहीं उत्तर प्रदेश की टीम जो है वो राजस्थान से हारी थी 44-36 पे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दोनों ही टीमें, अब इनके पास खोने के लिए अभी कुछ नहीं, अभी पाने के लिए सब कुछ है। एक मैच हारे जरूर है, मगर ये लीग के मैचेस होते हैं, सभी को एक दूसरी टीम के साथ खेलना होता है और अपने खेल कौशल को प्रस्तुत करना होता है। तो यहाँ पर सबसे स्ट्रांग जो मैं टीम कहूँगा इस पुरुष भार वर्गों में, पुरुषों में, तो वो राजस्थान, काफ़ी डिफेंडिंग चैंपियन भी रही है राजस्थान। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान का पलड़ा बहुत भारी है, मगर फिलहाल अभी आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के मध्य चलता है ये मुकाबला। We're just about to get started. Of course, Andhra Pradesh dressed in blue. Blue is a color of tranquility, of depth, signifies the sea, and that is exactly what they will need to summon. These are the qualities that they will need to summon, because they are indeed in a do-or-die position. Meanwhile, the players from Uttar Pradesh taking their positions, led by Captain Anshul. It's a very interesting story. Last year they were here, and Anshul was also a part of the team which failed to get through to the semi-finals. After that, they went home, conducted a whole new open trial which had players from each of the 75 districts of Uttar Pradesh, and then they conducted a fresh trial. Anshul, the captain who's currently raiding, is the only standing player, and now you know why. Straight away fetches the points, a successful raid, and Uttar Pradesh are up and running. बिल्कुल। और यहाँ पर एक अंक अर्जित कर लिया है, और अब फिलहाल यहाँ पर जी लक्ष्मण रेड करने के लिए आए हैं। अब देखना होगा, जी लक्ष्मण नहीं, टैकल कर लिया है, या बिल्कुल एक अंक और यहाँ पर उनको प्रदान किया जाएगा। तो यानी कि मुकाबले की अगर हम बात करें तो बिल्कुल दोनों ही ओर से मुकाबला बहुत ही अच्छा चलता हुआ उत्तर प्रदेश ने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। पहला उन्होंने रेड के दौरान अंक लिया था, और यहाँ पर अब डिफेंड जब किया जा रहा है तब पकड़ मजबूत आंध्र प्रदेश के पक्ष में जाएगा ये अंक। That was Kultar, the raider, wearing number 4 on his back, 17.5 years of age, has lofty dreams, and now chance for Andhra Pradesh to level things up. Chance for the captain. Oh, he wanted to jump over the defender there. Just a split second of delay. Now remember, we are playing in sand, and hence getting that impetus of the floor is difficult. Of course, it's the sport of the soil, but when you play on soil, it's much more heavier, much more tenacious, and then you can get that impetus, get that jump. Captain Anshul with the raid right now. Can he get through? Can he get through? No! He's locked, latched.
and he has to concede a point. So a neck and neck start, 2-3 still in the favor of UP, but Andhra fighting back. बिल्कुल अंशुल ने प्रयास बहुत अच्छा किया था और यहाँ पर अभी फिलहाल जी लक्ष्मण रेड डालने के लिए आए हैं आंध्र प्रदेश की ओर से। 2-3 का स्कोर है और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ लेग होल्ड करना चाह रहे थे, लेग पकड़ना चाह रहे थे, मगर उसमें असफल रहे और अंक यहाँ पर 3-3 बराबरी पर। फिलहाल 4 नंबर जर्सी कुलतार, यहां पर कुलतार ने 1 अंक और अर्जित किया। दो टैकल किए हैं उन्होंने, तो 2 अंक उनको यहां पर मिलेंगे। तो बढ़त की अगर हम बात करें तो 5-3 का स्कोर हो चुका है। बहुत बढ़िया तरीके से यहां पे प्रत्युत्तर दे रहे हैं। He has redeemed himself. Last raid was unsuccessful, but he has picked up points here. Now remember, there is no out or revival. No concept of out or revival. Did he get a hand? Did he get a hand? No, not quite, not quite. Remember, every raid must be productive. He did get a touch. He did get a touch. So the point goes to Andhra. They get a point. And now, back to the captain, Anshul. Taking his time, almost like a fisherman, waiting for one of the fishes to fall for the bait, and then he will insert the hook. Then he'll fish for a point. Can he get through to the midline? No! There comes the tenacious defense of Andhra Pradesh. And the captain has squandered 1 point. बिल्कुल, अगर रेडर की अगर हम बात करें अंशुल की, तो बहुत लंबी कद काटी है, लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकते थे, मगर चुस्ती दुरुस्ती देखिए आंध्र प्रदेश की टीम की, उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कि अंशुल वहां पर अंक जीत कर सके। और देखिए तेजी के साथ उत्तर प्रदेश की टीम प्रयास बहुत अच्छे कर रही है, मगर आंध्र प्रदेश की टीम का जो यहाँ पर खेल कौशल है वो अपने आप में काबिल तारीफ। कोई अंक नहीं लेने देना चाह रहे, तो पूरे जुझारू तरीके से यहाँ पर खेलते हुए सूरज कुमार रेड करते हुए 1 अंक लिया। And after that, he even took time. A gross mistake committed by the left corner, but Kultar has found his straps. Look how nonchalantly he dives backwards and takes use of that big reach of his. Once again, back to G. Lakshman, who's now going to be raiding for Team Andhra. जी लक्ष्मण रेड डालने आए हैं, 6-6 बराबरी का भी स्कोर है। आप ये कह सकते हैं दर्पण, तू डाल में पात। जैसे ही अंक अगर उत्तर प्रदेश अर्जित करता है तो वहीं प्रत्युत्तर में यहां पर आंध्र प्रदेश उनको काउंटर देता है, तो यहां पर काउंटर की गेम उनकी बहुत अच्छी। Yes, that was Abhishek with the good thigh hold, and you could see G. Lakshman slipped over there because they are playing in sand. Once again, remember, 30 centimeters of sand beneath them, and hence the foot sometimes goes within. Now they've called one of the groundsmen to try and level up whatever upheaval has been created, and hence you will see him use a wooden wiper-like tool to just level the field of play so that we can have some evenness. This is the replay. Look how Abhishek gets hold of G. Lakshman, and then his foot just slides deeper into the sand, forbidding him from recovering. A substitution, meanwhile, has been made for Team Andhra, and we begin again. Kultar with this raid, and he falls into the trap, can't get through. प्रयास अच्छा था, मगर हम कह सकते हैं जो डिफेंडर हैं वो अपने आप में बहुत ही काबिल तारीफ उनकी करनी पड़ेगी। 7-7 बराबरी पर यहाँ पर अंक पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से आंध्र प्रदेश प्रत्युत्तर दे रहा है उत्तर प्रदेश को, वेंकटेश कायल रेड करते हुए आंध्र प्रदेश की ओर से, यहाँ पर अंक लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो नियम है बिल्कुल परिवर्तित होते हैं। डू एंड डाई, हर रेड में डू एंड डाई है, आपको हर रेड में अंक लेना है। और यहाँ पर टैकल कर दिए गए। Once again, it is Abhishek with that brilliant ankle hold. He was the one to prowl like a panther and get hold of the raider. He is somebody who has got lofty ambitions. Tells me that he went to witness a kabaddi game along with his school friends who were playing in it, and he was just a viewer. He got interested in kabaddi, then took up the sport, started playing, and now he aspires to one day represent India. I asked him, what are your ambitions? And he said, एक ही ambition है सर, देश को मेडल जिताना है। बिल्कुल, कबड्डी एक ऐसा खेल है जो कि एशियन गेम्स में भारत के लिए एक गौरवान्वित सफलताएं लेकर आया है। लगातार अगर आप देखें तो निरंतर मेडल लेके आया है। और यहाँ पर आपत्ति दर्ज की है कि एक का उन्होंने कहा है कि मैंने किया है
टैकल देखना होगा क्या बिल्कुल पुष्टि हो गई है उस अंक की। तो 9-7 का स्कोर था। ये देखिएगा रिप्ले में किस तरीके से बिल्कुल टच हुए थे, बिल्कुल सही पुष्टि हुई है इसकी, रिप्ले में साफ दिखता हुआ। और 8-9 का स्कोर हो गया है। उनके प्रशिक्षक के जगदीश जो कि एनआईएस क्वालिफाइड हैं आंध्र प्रदेश के, और वहीं अगर बात करें उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर फिलहाल प्रशिक्षक हरपाल जो कि एनआईएस क्वालिफाइड हैं और आगरा के रहने वाले हैं, अपनी टीम को बताते समझाते हुए, आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए। ऐसे में दर्पण बहुत ही टॉनिक का काम करती है। प्रशिक्षक द्वारा दी गई हिदायत, बताया गया उनका योजना, क्योंकि वो बाहर से बैठा दोनों टीमों को देख रहा है और एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं। मैन टू मैन, गेम टू गेम देखा जाता है और वो स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं कि किस तरीके की रणनीति का वह प्रयोग करे। जहां पर भी वो लूज देखते हैं, राइट कॉर्नर या लेफ्ट कॉर्नर लूज देखते हैं, तो वो कहते हैं कि अपने प्लेयर को समझाते बताते हैं कि किस तरीके से वो रेड डालने जब जाए तो कमजोर कड़ी कहां पर है और वहां पर वो अंक प्राप्त करे। फिलहाल रेड डालने यहां पर 4 नंबर जर्सी कुलतार, And very swiftly, with a wonderful hand touch, the defender tried to go deep towards the end line, but once again using that long reach of his. Now keep your eyes on the right corner. Abhishek has been like a live wire in the defense today. 17 and a half years of age, prowling like a panther in that corner. However, G. Lakshman too, very nimble on his feet, very agile. And he gets a touch. He gets a touch on Abhishek himself and wins this point. G. Lakshman has been superb today. बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर खेल कौशल चल रहा है, 9-10 का स्कोर है। फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की तरफ से जो रेड डालने आए हैं अंशुल, देखना होगा कैप्टन है और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए, कैप्टन की भूमिका का निर्वाह करते हुए यहाँ पर प्रयास उनका अच्छा है। डू एंड डाई की ये रेड होती है तो अंक लेना बहुत जरूरी है अंशुल के लिए, अन्यथा वह प्रतिद्वंदी टीम को अंक दे देंगे। फिलहाल उन्होंने टैग किया और इसी के साथ एक अंक और लिया, तो 11-9 का स्कोर हो चुका है। फिलहाल अब अगर हम बात करें तो 6 मिनट का खेल शेष और है पहले हाफ का। Meanwhile, a timeout has been called for. We have a look at Anshul once again and his brilliance with that raid. Wonderfully well done. So a 30-second timeout was allowed. And remember, this is 2 halves of 15 minutes each as opposed to 20 minutes in regular kabaddi or traditional kabaddi. In beach kabaddi, you have 15-minute halves, 2 of them. And of course, there are no tiebreakers in the league stage. We do go into a tiebreaker if one of the knockout games is tied. That ankle hold from Abhishek once again. G. Lakshman trying to get through. He won't be able to. Once again, Abhishek doing wonderfully well in the defense. His grip steadfast and suffocating. दर्पण टीम गेम का जो योगदान है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की टीम जो यहाँ पर प्रस्तुत कर रही है, जिस तरीके से अभिषेक ने प्रयास किया, एंकल होल्ड किया और वहीं दर्पण और उन्होंने मिलकर बिल्कुल अभी पूरे तरीके से रोका और लग रहा था कि क्या वो लाइन को, सेंटर लाइन को टच कर जाएंगे, मगर नहीं, उन्होंने करने नहीं दिया। और यहाँ प्रशिक्षक द्वारा हरपाल एक हिदायत दे रहे हैं, बता रहे, समझा रहे हैं कि किस तरीके से अपने खेल कौशल को और अधिक तरीके से रणनीति पूर्ण दिए। देखिएगा ये रिप्ले किस तरीके से बिल्कुल लपकते हुए दोनों टांगों को पीछे खींचा। और बहुत मुश्किल होता है, आप मैट पर जब कबड्डी खेलते हैं तो आप आराम से तेजी से आगे की तरफ जा सकते हैं, मगर यहाँ पर ताकत और अधिक लगानी पड़ती है। तो क्योंकि आप आधा शरीर तो आपका धंस जाता है रेत के अंदर ही। Yes, that is why they say it is more about stamina than just swiftness in this particular sport. Now, trying to pick up a point over there, trying to see where the loophole is, taking his time, prowling, and gets caught, clamped, controlled, contained. The point once again goes to Uttar Pradesh and the lead bit by bit increasing 13-9 now. बिल्कुल आंध्र प्रदेश के अभिराम, जिन्होंने प्रयास बहुत अच्छा किया था मगर अपने आप को बचा पाने में नाकामयाब रहे और वहीं पर एक अंक गवा बैठे। 14-9 का स्कोर हो चुका है और मात्र 6 मिनट 34 सेकंड का खेल शेष है पहले हाफ का। अब देखना होगा अंशुल, बिल्कुल सही, एक अंक और उन्होंने अर्जित किया अपनी टीम के लिए। उत्तर प्रदेश ने बहुत बढ़िया खेल कौशल को प्रस्तुत करते हुए 15-9 का स्कोर, बढ़त एक आप में बहुत बड़ी बनाने की कोशिश कर रहे हैं
अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, क्योंकि ये गेम इतना तेजी से, विश्व का दूसरे नंबर का ये ऐसा खेल है जो सबसे ज्यादा तेजी से खेला जाता है। और जैसा बीच कबड्डी की अगर हम बात करें तो आम कबड्डी के मुकाबले बीच कबड्डी और ज्यादा अधिक चुस्ती दुरुस्ती वाला, क्योंकि कम खिलाड़ी हैं, 7 की जगह 4 ही खिलाड़ी खेल रहे हैं और स्पीड वर्क ज्यादा है। Mistake there from Abhishek, and this time G. Lakshman winning the contest. And now Kultar for the raid. The ankle hold, the long reach of Kultar. Did he touch the midline? Did he? Don't think so. We'll have to wait for the referee's decision. But watch this. Watch why Kabaddi is such an enthralling sport. Oh, did that finger of his touch the red line? बिल्कुल एक अंक दोनों ही ओर दे दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो ये एक रन जो रेफरी का निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है, और रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि पूरे मुकाबले को नियमबद्ध तरीके से नियंत्रित करना। फिलहाल जी लक्ष्मण, प्रयास बहुत अच्छा है जी लक्ष्मण का, और इसी के साथ एक अंक और अर्जित कर लिया है। बहुत ही बढ़िया तरीके से, कितनी तेजी के साथ दर्पण वो आए, अपनी क्रियान्वित किया अपने कार्य को, और तेजी से अपने पाले में सुरक्षित चले गए अंक लेकर। He got through that ankle hold that we were drooling over a little while ago. Abhishek's ankle hold, not as gripping, not as tenacious on that occasion. Now Anshul with the raid, trying to make sure that he doesn't go too deep. Look at this. Oh, he falters and done. दर्पण अपनी ही गलती में उलझे, देखो अंशुल प्रयास करना चाहा था, जैसे ही मूवमेंट करने लगे, फुटवर्क यहाँ पर बहुत मायने रखता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप फोर्स को जनरेट करते हैं। जब आप मूवमेंट करें, दोनों पैरों को शोल्डर के इक्विवेलेंट करके ही मुड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। आपने जहां गलती करी, दोनों पैर आपके क्रॉस हुए नीचे, और वहीं आप खुद लपक लिए गए। Absolutely, and that is why the way you move, especially when it comes to a sand base, moving rightly on a sand-based field is very, very important. The right technique is very, very important. And I think that is exactly what coach Harpool Singh must be telling his players. देखिए, मैट पे जब आप खेल रहे होते हैं तो आपने शूज पहने होते हैं, मैट शूज पहने होते हैं, और उसमें आपको स्पीड ज्यादा मिलती है, तेजी मिलती है। मगर यहाँ पर ताकत लगानी पड़ती है, आपको मुड़कर अपनी स्थिति को पहले मजबूत करना होता है, और फिर आप डिसीजन लेते हैं कि आप राइट साइड को निकल रहे हैं या लेफ्ट साइड को निकल रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पैर धंस जाते हैं। तो ताकत और आपको तेजी, स्पीड, अपने पल्स आप जो लगाते हैं तो वो मतलब दुगनी लगानी होती है अपेक्षाकृत जो आप मैट पर आम कबड्डी खेलते हैं। And I must tell the viewers that all that you talked about, where you stabilize yourself, then you make a decision, then you move, all that is happening in a split second. So you have to be very, very quick, not just on your feet, but mentally as well. G. Lakshman here, trying to be quick, trying to be cunning, trying to be courageous, trying to ensure that he gets the right touch. However, the defense is also moving very swiftly, not giving him a chance. Did he get a touch on Abhishek? He did. Oh, he's been like a panther over there. G. Lakshman, he's been swift, he's been agile, he's been nimble, and he has earned the most raid points thus far in this contest. बिल्कुल, कुलतार प्रयास बहुत अच्छा कर रहे थे, मगर कुलतार ने एक गलती करी, पीछे मुड़कर देखने लगे। जब आगे आप जा रहे थे तो आप आगे ही जाते तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होता। पीछे मुड़ना ही उनके लिए एक आत्मघाती सिद्ध हुआ, और यहाँ पर रेफरी द्वारा चेताया भी गया आंध्र प्रदेश के खिलाड़ी को कि आप डेंजर तरीके से नहीं पकड़ सकते, आप गर्दन को दबा नहीं सकते हैं, नियमानुसार यह सही नहीं होता। और आप चेन देखिए उत्तर प्रदेश की, कितने जबरदस्त तरीके से अपनी चेन बनाते हैं। दर्पण ये देखिए, प्रयास अच्छा है यहाँ पर। सूरज कुमार, जी लक्ष्मण बहुत ही बढ़िया तेजी के साथ अपने आप को निकाला। जी लक्ष्मण की एंकल होल्ड करने का प्रयास जरूर था, मगर उसको नहीं होने दिया। अपनी आत्मरक्षा करते हुए जंप लिया, जंप शॉट लिया, जंप शॉट लेने के साथ ही अपने पाले में आए। The score draws level to 16 all, and now up to Captain Anshul to try and do it. And look how he gets close to the midline and flamboyantly looks back. Are you going to come for me? I'll get one more point if you do. बिल्कुल, आप देखिए तैयारी कर रहे थे कि वो इंतजार कर रहे थे कि कोई और आके उनको पकड़ने की कोशिश करे, और तब वो सेंटर लाइन को टच कर दें, रेड लाइन को टच कर दें। Nimble and naughty. हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यह दिखा सकते हैं
चीते जैसी चपलता, चुस्ती दुरुस्ती जो यहाँ पर दिख रही है, वो अपने शिकार का बिल्कुल इंतजार करता है और समय रहते ही वो प्रयास करता है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल कुलतार कैच हो गए कुलतार, ये नुकसानदेह रहा उनके लिए। 17-18 का स्कोर। फिलहाल आंध्र प्रदेश बढ़त बनाने की कोशिश कर रहा है, बराबरी पर लाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट हाफ का ये मैच चल रहा है और कोई अंकों में अंतराल नहीं है। जहां पर पिछड़ रहा था आंध्र प्रदेश, अब बराबरी पर लाने का उनका पूरा, और बहुत बढ़िया रेडर है, ये देखना होगा अंकों में परिवर्तित कर पाते। बिल्कुल सही, जिस तरीके से उनको पकड़ने की कोशिश की गई थी वहां पर उन्होंने सेंट्रल लाइन को टच किया और सुनिश्चित है अंक अर्जित किए होंगे। एक लेते हैं या दो लेते हैं, ये देखना है। Oh, he might have got 2 there. G. Lakshman. In fact, 3. Sanjeev ji, 3. बिल्कुल बहुत बढ़िया, जहां पिछड़ रहे थे वहां पर 19-18 का स्कोर। And we must tell our viewers that they lost their opening fixture 53-16. That was the score line. So they didn't just lose it. They were thrashed. They were thumped. And this is what sport tells you, that बिल्कुल the sun will rise again tomorrow. You'll get a chance to bounce back. कॉल किया है, यहाँ पर टाइम आउट लिया है उत्तर प्रदेश के एक कोच ने, और वो हरफुल बताते समझाते हुए। और यहाँ पर दूसरी टीम के भी अगर प्रशिक्षक की बात करें तो जगदीश काफ़ी अनुभवी प्रशिक्षक हैं, भारतीय टीम के साथ भी रहे हैं और यहाँ पर NIH क्वालिफाइड कोच हैं ये। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोच के द्वारा बताई गई रणनीति और एक जो टिप्स दिए जाते हैं कि किस तरीके से आप अपनी और अधिक अंकों में परिवर्तित करें। फिलहाल रेड डालने के लिए उत्तर प्रदेश तैयार। कुलतार, प्रयास अच्छा था कुलतार का, और यहां पर उन्होंने वेंकटेश कायल को टच किया था किक से और फिर एक अंक अर्जित किया। रेफरी द्वारा बताया जा रहा है, कार्ड दिखाया गया है, नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंडित किया जाता है, आपको कॉशन दिया जाता है कि आप संभल कर खेलें। ये कॉशन उनको पहले भी दिया गया था। जब आप उस कॉशन को नहीं मानते हैं तो वो गलती ना रह करके अपराध का रूप धारण कर लेती है और उसी के स्वरूप उनको कार्ड दिखाया गया। फिलहाल जी लक्ष्मण नहीं, जी लक्ष्मण जो चाह रहे थे उसको पूर्ण कर पाने में नाकामयाब रहे। अब यहां पर उत्तर प्रदेश बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि प्रतिद्वंदी टीम आंध्र प्रदेश की कोई अंक अर्जित कर पाए, और ये देखिएगा किस तरीके से उन्होंने बराबरी पर लाए और अब एक अंक की बढ़त बनाने की कोशिश। Captain Anshul now with the raid, trying to take his time once again. This is where he faltered the last time he conceded a point. And once again, he's trying to do it again. And this time around, he does it well. Wins a point. But I must tell you that the referee might want to have a word with him. बिल्कुल बड़ी तेजी से उन्होंने एक को तो टच कर लिया था और पीछे कोशिश कर रहे थे दूसरे को भी। ये देखिएगा कि दूसरे को भी टच कर दे, उनके पीछे बैक पर वो टच करना चाह रहे थे मगर वो नहीं हुए। यहां अपने आप को बचा गए, एक अंक और अर्जित किया। And meanwhile, whilst you were busy watching the replay, G. Lakshman has been humbled by the defense of Team Uttar Pradesh, who now receive one more green card. Nikhil, this time around, getting the green card. Watch this. This is what happened. A little bit of dangerous work, that. आप अपने पूरे शरीर का भार लेकर जबरदस्ती नहीं डाल सकते हैं। जब आप इंटेंशनली कोई अपराध करते हैं, इस तरीके से कोई फाउल खेलते हैं, तो रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है कि आपको चेताया जाए कि आप संभल कर खेलें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि पूरे खेल को नियमबद्ध तरीके से नियंत्रित करना। और फिलहाल बताते समझाते हुए, The first half is done. Remember, 15 minutes each half. In between, you get a 5-minute break. And the conversation that is happening in the UP camp is an animated one. Of course, the players would want to catch their breaths, but the coach also trying to ensure that he keeps his players in the right frame of mind. Because over here, the conversation that is happening, that is mental. You can't teach technique mid-game, but a coach's job is to keep them in the right mindset. These are the highlights of the first half. Enthralling, riveting, and sapping play. G. Lakshman, currently on your screens, he was the real superstar of that particular half.
He was nimble, he was like a cheetah, went deep in the half of the opponent, got those touches, and at times tried to use his strength and was humbled. But that's what sport is about. Sometimes you get humbled, you try and get up, and you try and make the next move. This is beach kabaddi being played in sand, which presents its own challenges. But the drama, the interest, the spectacle that kabaddi is, that remains the same. The spirit remains the same. बिल्कुल दर्पण, हम कह सकते हैं कि बीच कबड्डी का जो स्वरूप है वो एक नया स्वरूप सामने देखने को मिला है। दूसरी बार यहाँ पर बीच कबड्डी का आयोजन किया जा रहा है, खेलो इंडिया बीच गेम का आयोजन किया जा रहा है और अपने आप में बहुत ही बढ़िया खेल कौशल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से सभी खिलाड़ी यहाँ पे अपने खेल कौशल को प्रस्तुत कर रहे हैं, काबिले तारीफ। और अगर हम बात करें पहले संस्करण की 2025 में जो कि खेला गया था, हरियाणा वहां पर सर्वप्रथम पहले स्थान पर रहा था पुरुषों में और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहा था और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। और महिलाओं की अगर हम बात करें तो हरियाणा ने दोनों ही ओर से, महिलाओं में और पुरुषों में, हरियाणा पहली पायदान पर रहा था, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई थी और हिमाचल प्रदेश रजत पदक विजेता रही थी महिलाओं की टीम और दिल्ली और महाराष्ट्र ने कांस्य पदक जीता था महिलाओं में। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से निरंतर गेम्स आगे बढ़ती जा रही हैं और भी स्टेट्स इसमें प्रतिनिधित्व कर रही हैं, भाग ले रही हैं, तो आने वाले समय में ये खेल एक ऐसी रूपरेखा के साथ आगे उभर कर आएगा क्योंकि सबसे फास्ट गेम है। आप देखिए, दूर से देखिए, हमारे ड्रोन से आप देख सकते हैं किस तरीके से गोल सर्कल में खिलाड़ी अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं, किस तरीके से अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। ये दोनों ही चीजें होती हैं, अपने आप को तैयार करना अपने अगले प्रयास के लिए, अपने मैच के लिए। तो बीच पर ये एक सबसे बड़ा फायदा जिन स्टेट्स में, जैसा कि अभी मिस्टर अजीत ने अपने उद्घोषण में बताया, अभी अपने शास्त्राकार में बताया कि जहां पर समुंदर है उनको, उन टीमों को, उन राष्ट्रों को बहुत आसानी होती है उन राज्यों को खेलने में यहाँ पर बीच कबड्डी, क्योंकि दूसरे राज्य जहां पर समंदर नहीं है वो यहाँ से रेत को लेकर जाते हैं और एक आर्टिफिशियल बीच कबड्डी के लिए एक पाला तैयार करते हैं। तो फिलहाल अब हम पहुंचते हैं अब अगले हाफ की ओर, सेकेंड हाफ की ओर। दोनों ही टीमें तैयार हैं। अब देखना होगा कि यहां पर क्या उत्तर प्रदेश अपनी अंक तालिका में अपने आप को सुनिश्चित कर पाएगा या आंध्र प्रदेश उसके इस विजय रथ को रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा। We have to really laud what Team Andhra has been able to do thus far, because when you look at the scoreline of their first match, after losing 53-16, the kind of comeback that they have registered, each one of those four players have had a contribution in that, but the real superstar has been G. Lakshman, who's been their superstar raider. Something that Team Uttar Pradesh will also need to do. Their raiders have been a little bit inconsistent, especially towards the second half of that first half. If you catch my drift, that was team manager Mudita Yadav who was having a word with one of the defenders over there. Will have to bring their A game in the second half. That's Abhiram on your screen, one of the defenders. He will have a job to play. In fact, that's G. Lakshman. He has been the superstar. Will he continue the good work with his raiding, or will we see the captain Venkatesh Kayala step up? और यहाँ पर रेड डालने के लिए वेंकटेश पहले प्रयास के लिए 19-22 का स्कोर रहा था पहले फर्स्ट हाफ में। अब देखना होगा, वेंकटेश जूनियर नेशनल के में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, अंडर 19 और खेलो इंडिया यूथ गेम में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। काफी अच्छा अनुभव है उनके पास। फिलहाल एक अंक जो है वो अभी सेकंड हाफ में उत्तर प्रदेश ने अपने लिए अर्जित कर लिया है। Now Kultar has the responsibility of taking his team off to a good start in the second half. Trying to create an opportunity for himself. Goes too deep, but still recovers and recovers beautifully. Winning 2 points for his team. देखिए दर्पण, जो मैं बात कर रहा था लंबी कद काठी का क्या फायदा होता है वो यहाँ पर देखने को मिला।
एंकल होल्ड किया था, मगर लॉन्ग रीच का जो फायदा है, बिल्कुल सेंटर लाइन को उन्होंने छू दिया और 2 उन्होंने अंक अर्जित किए। फिलहाल लक्ष्मण Well, another faulty raid there. Wasn't quite able to win the point. That point that Kultar won, Sanjeev ji, that reminds me, because we are in DU, we have been hearing about fishermen and their whaler so many times in the last couple of days. We have been hearing stories. It reminds me of the whaler that a fisherman exhibits. They go deep in the sea. Of course, DU around the maritime borders. The sea in itself is a challenge. And that's what Kultar did on that occasion. He went deep in the opponent's half. And then from there, he brought the point. He fished the points. Anshul trying to do something same. But he has been held and humbled by Andhra Pradesh's tenacious defense. Once again, teamwork coming to the fore. बिल्कुल, आपने ये देखिए पूरी दीवार की तरह बनकर सामने खड़े हो गए थे अंशुल के सामने और अंक नहीं लेने दिया। और ये देखिए प्रत्युत्तर कितना बढ़िया तरीके से दिया। तू डाल में पात 19-24 का स्कोर, ये पहले हाफ का। The referee once again having a word with the defenders, and another green card. Holding your ears won't do anything now. Kultar has once again been at fault and therefore getting reprimanded by the referee. पूरे प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आए हैं महाराष्ट्र के प्लेयर छूने की कोशिश करते हुए। Well, a bit of hold in play. A timeout has been called for, and Coach Harpool Singh, his words of wisdom are needed at this stage. When again and again and again the referees have told the players that you're at fault, you're going over the line, and you do not need to. बिल्कुल आगे की रणनीति के बारे में बता समझा रहे हैं कि क्या गलतियां, क्या त्रुटियां उनसे हुई हैं, उन त्रुटियों को पुनः ना करें क्योंकि वह आपके लिए आत्मघाती सिद्ध हो रही है। यहां पर फिलहाल लक्ष्मण जिनको कैच कर लिया गया। So I think it was the objection was against Nikhil, who tried to almost bend the Raiders backwards after catching hold of him. बिल्कुल, आप इसमें पकड़कर घसीट नहीं सकते हैं, तो ये नियमानुसार सही नहीं होता है। तो इसका नियमों का उल्लंघन करने पर आपको दंडित भी किया जाता है, जैसे पहले कार्ड दिखाया भी गया था रेफरी के द्वारा। और ये देखिएगा कितने प्यारे थे, बहुत ही सहजता के साथ कुलतार ने अपनी रणनीति को अंजाम तक लेकर गए। 30 सेकंड की जो समय अवधि होती है वो उसका पूरा इंतजार कर रहे थे कि मैं अपना पूरा 30 सेकंड पूर्ण करूं। And one of the reasons for that is because Uttar Pradesh are in the lead, so they can bide their time. They can use up that time. और ये भी एक रणनीति का ही पार्ट होता है दर्पण, कि आप जब जीत के और अग्रसर हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि अपनी टीम को एक सेफ जोन में रखें। ज्यादा आप हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा आप चैलेंज नहीं लेते हैं, तो आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। फिलहाल कुलतार, ये तीसरी बार कुलतार यहां पर रेड डालने गए हैं और तीनों बार ही वह लपक लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं। तो यहां पर थोड़ा सा कुलतार वही गलती कर रहे हैं, बार बार पुनरावृत्ति कर रहे हैं अपनी उस गलती की। तो यहां पर थोड़ा सा उनको अपने खेल में सुधार लाना पड़ेगा। राइट कॉर्नर में ना जाकर के लेफ्ट कॉर्नर में रहें, अपने आप को रखें, तो वहां से तेजी से बाहर की ओर निकल सकते हैं। Well, we have to laud Venkatesh Kayala there, the captain, for that wonderful ankle hold of his. Now, G. Lakshman, he hasn't quite got on off to a good start in this particular half, and once again an unsuccessful raid. I wonder why. Is it G. Lakshman only who's been sent into the opponent's half again and again and again? Yes, he was mighty successful in the first half, but over here, in the last 3 successive raids, he hasn't quite been able to fetch a point. Momentum is a thing. Why don't you break it by sending the captain Venkatesh Kayala? Oh, meanwhile, Anshul, with that spectacular raid, wins 3 points, and now the difference is widening. The gap is increasing. 32 to 22. Uttar Pradesh surging ahead. Remember, Uttar Pradesh won their first match. That was against the hosts, Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. They won it by 55-33.
And if they win this particular contest, they might as well get on the verge of making it to the semi-finals. Meanwhile, for Andhra Pradesh, this is almost do or die time now. They're trailing. They lost their first match by a huge margin. And now it is now or never. It is make it or break it. Once again, they're going with G. Lakshman. 4 successive unsuccessful raids, and yet they don't want to break the momentum. They don't want to send somebody else. It is once again G. Lakshman who's going in. बिल्कुल 10 अंकों का अंतराल हो चुका है और अगर इस दूसरे हाफ की बात करें तो दूसरे हाफ में लगातार ये देखिएगा उत्तर प्रदेश ने अपनी क्षमताएं दक्षताएं परिपूर्ण करते हुए दिखाई हैं, प्रस्तुत की हैं। और यहाँ पर देखिए अंशुल जो कि कैप्टन है अब रेड डालने के लिए जा रहे हैं। ये देखिए फिलहाल ये भी लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के, जिनको पकड़ लिया गया। उत्तर प्रदेश के एक प्लेयर आ चुके हैं अंशुल 22-33 का स्कोर है दर्पण, और अब देखना होगा चपलताएं कुछ दिखानी होंगी जरूर। राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट की ओर आते हुए यहाँ पर बाहर चले गए लॉबी से, मगर टच कर दिया। 1 अंक उनको प्रदान किया गया है। रेफरी ने उनको सुनिश्चित किया कि पहले उन्होंने आपको आउट कर दिया था, उसके बाद अगर आप अपने बाहर होते हैं तो वह नियम अनुसार गलत नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप रनिंग स्टाइल में बाहर की ओर जाते हो फिर अंदर हो रहे हैं। Once again with G. Lakshman. Why can't they break this losing streak, this momentum, and send somebody else? 5 unsuccessful raids, and yet you stick to G. Lakshman. Will he win this point? He does. He does. The commentators' curse this time turned out to be commentators' boon for Andhra Pradesh. बिल्कुल ये एक ऐसी ऊर्जा का संचार कर रहे हैं सभी दर्शकों के भी मन में, कि दिखा रहे हैं कि देखिए हारी हुई बाजी को किस तरीके से जीता जाता है। तो क्षमताएं दक्षताएं जो वो अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं काबिले तारीफ है। हालांकि देखिए कदकाठी अपेक्षा करत उत्तर प्रदेश की टीम के खिलाड़ियों के अपेक्षा करत उनकी थोड़ी सी कम जरूर है, मगर खेल कौशल किसी से कम नहीं है। It's not the size, it's the size of the fight that you have in you, isn't it? बिल्कुल इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं, अगर सच्ची लगन हो तो रास्ते आसान होते हैं। फिर भी अभी भी 10 अंकों का अंतराल जरूर है, 11 अंकों का, मगर आप देखिए कि इस अंतराल को किस तरीके से कम कर पाएंगे। क्या बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर होल्ड किया, किस तरीके से ये देखिए बिल्कुल मौका नहीं दिया। हालांकि रेफरी ने उनको थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर दिया कि संभल कर खेले, अपने पास बुलाया कि आप इस तरीके से जर्सी को पकड़ नहीं सकते हैं, आप वेशभूषा को पकड़ नहीं सकते, खींच नहीं सकते हैं, ये नियम अनुसार सही नहीं होता है। तो देखिए पकड़कर आपने जर्सी से पकड़कर खींच रहे थे, मगर फिर उन्होंने प्रयास अपनी गलती को समझा और उसी को दुरुस्त किया। He's got a green card though. He's been given a green card. Meanwhile, a timeout has been called for. Coach Harpool Singh walks up to his players, tries to have a conversation, but by the looks of it, it looks like, Sanjeev ji, that the players are having the conversation and coach is just listening to them. So maybe it is because they wanted a bit of a breather. दरअसल सबसे बड़ी चीज यही है कि प्लेयरों को पता है वो अपनी कहां पर गलती कर रहे हैं, तो वो अपने आप से ही बात कर कर अपने आप को समझाते बुझाते हैं कि देखिए हमसे ये गलती हो गई है, ठीक है। आपस में मंत्रणा करते हैं किसने कहां लूज किया अपने आप को, वो चीज बताना बहुत जरूरी है। ये देखिएगा कैप्टन से मंत्रणा करते हुए, बताते समझाते हुए यहाँ पर निखिल बता रहे हैं कि यहाँ पर तुमने ये गलती करी थी, उसको सुधारो। और कैप्टन ने बड़ी सहजता के साथ गर्दन हिलाकर स्वीकार किया कि हाँ वो गलती हुई है और उसको मैं ठीक करूंगा। अब आगे की रणनीति बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेगी, क्योंकि ये दूसरा हाफ चल रहा है और मध्यांतर के बाद अब जो स्कोर है वो 10 अंकों की बढ़त बना रखी है उत्तर प्रदेश ने। फिलहाल देखना होगा क्या उस बढ़त को बरकरार रखते हुए विजय श्री की ओर आगे अग्रसर करते हैं। 34-24 का स्कोर लक्ष्मण रेड करते हुए आंध्र प्रदेश की ओर से अपने मौके की तलाश में। ये देखना होगा लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यहां पर पूरे कोर्ट पर पूरी तरह से अग्रसर थे, मगर यहां पर कैच हुए। उत्तर प्रदेश ने जो रणनीति बनाई है वो पूरी तरह से क्रियान्वित की। 24-35 का स्कोर। The lead is getting to insurmountable levels now.
11 point the difference. And I wonder why you still need to persist with G. Lakshman. Yes, this is a sport of stamina, but then it is also a sport of strategy. Maybe give him a breather. Maybe try and send in the captain. The captain is not going himself for the raid. He's the other raider in this side. Meanwhile, the defense is absolutely unwavering. Together, synchronized and suffocating the raider, sealing the point. बिल्कुल वेंकटेश रेड्डी जिस तरीके से आगे आए, ये देखिएगा अंशुल अंदर की ओर बहुत ज्यादा अत्यधिक अंदर गए थे मगर वेंकटेश रेड्डी और अभिमन्यु बिल्कुल दोनों आगे की ओर ब्लॉक किया उन्होंने ताकि वो अपने हाथ को सेंटर लाइन से टच ना कर दे। तो ये एक रणनीति उनकी बहुत अच्छी थी। आपस में मंत्रणा किया तीनों रेफरीज ने। अगर कोई गलती है तो यहां पर पुष्टि होने के बाद 2 अंक प्रदान किए गए हैं। 10 अंकों का अभी भी अंतराल है। 25-35 का स्कोर है। रेड डालने के लिए यहां पर आ गए हैं कुलतार, उत्तर प्रदेश की ओर से सीनियर नेशनल में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और सीनियर नेशनल के कांस्य पदक विजेता भी रहे हैं। अनुभव उनके पास राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बहुत अच्छा है। देखना होगा वो अनुभव आज कितना उनके लिए कारगर सिद्ध होता है उत्तर प्रदेश के लिए। प्यास अभी तक वह वो क्षमताएं दक्षताएं दिखा पाने में नाकामयाब रहे हैं जिसकी उनसे अपेक्षा की जा रही थी। यहां पर 1 अंक गवा दिया लेने की बजाय। Right, so trying to bridge the gap, our team Andhra, still it is a bridge that seems too far at this point of time. 28-35, still a long distance away. Kultar took his time and eventually was dashed down. He did try to show some desperation, but like a fish caught in the net of a fisherman, there was no escape whatsoever. अंशुल सबसे बड़ी चीज देखिए, आप अगर रिप्ले में अगर हमने देखा जैसा कि आंध्र प्रदेश की टीम 3-1 का लेकर चल रही है, यानी कि 3 प्लेयर जो है वो पकड़ पड़ते हैं, 2 एंकल होल्ड करते हैं, एक उसके हाथों को रोकने की कोशिश करता है और तीसरा जो है वो उसके सर के पास खड़ा हो जाता है ताकि अगर किसी भी तरीके से उसकी बॉडी का कोई पार्ट सेंटर लाइन की ओर आगे की ओर बढ़ना चाह रहा है तो वो उसको रोकने में कारगर सिद्ध हो। यानी कि चारों लोग किस तरीके से एक दीवार सी बनकर सामने खड़े होते हैं। फिलहाल यहां पर वी लक्ष्मण बैक किक का इस्तेमाल किया था उन्होंने, मगर यहां पर उसमें पूर्ण निखिल को टच नहीं कर पाए। 3 नंबर जर्सी निखिल अपने मौके की तलाश में है। देखिए किस तरीके से नहीं, यहां पर 3 अंक जरूर लेंगे, 2 अंक लेंगे। टाइम नहीं देख रहे हो तुम लोग। 2 अंक दिए गए। Wasn't deep enough for that ankle hold. A little bit of a strategic lapse there from the Uttar Pradesh captain. Anyhow, the game moves on. Kultar has a chance to redeem. They can't be complacent. The difference has now been drawn down to just 5 points. You cannot take things for granted. Kultar once again taking his time, trying to ensure that he gets the right touch. He does he? Yes, he does. And more than the touch, how he escaped the ankle hold of the Andhra Pradesh skipper was the laudable thing in that raid. सबसे बड़ी चीज मैं यहाँ पर एक तारीफ करूंगा आंध्र प्रदेश की टीम की। कहाँ 25-34 का स्कोर था, 10 अंकों का अंतराल था, मगर वहां पर 30-36 का स्कोर हो गया। अब 4 अंकों का ही अंतराल है और 4 मिनट से भी कम अब समय है। तो यहाँ पर इस समय लक्ष्मण रेड डालते हुए एक प्रयास जरूर किया था मगर असफल रहे। How slick was that? Just for a split second, Lakshman turned his back towards Abhishek and it was almost like complacency started setting in, and then Nikhil prowled down and did that thigh hold, not letting the raider escape. Wonderfully well done. 37-30 now. Uttar Pradesh once again have the momentum back with them. Anshul with this raid. बिल्कुल अंशुल ने देखो बिल्कुल लास्ट कोने पर ले जाने पे मजबूर हो गए हैं और यहाँ देखिए तेजी के साथ आ गए हैं। बहुत ज्यादा गलती करती थी, मुझे लग रहा था ये गलती उनकी आत्मघाती सिद्ध होगी और वो यहाँ पर साफ दिखी भी। बहुत अत्यधिक नीचे अंदर की ओर जा रहे थे। राइट कॉर्नर की तरफ अगर वो जाने की कोशिश करते तो उनके लिए ज्यादा अच्छा होता। But I think we must say that Venkateshwara Reddy, who's wearing number 2 on his back, this is as much his point as much anybody else's.
Because before this happened, of course you are not allowed to pull the jersey, and hence Abhiram has been reprimanded. But before that happened, Venkateshwara Reddy went deep, almost leaned over the end line, and that drew the raider even deeper into the court, and hence the mistake was ultimately committed. बिल्कुल, जब आप बहुत ज्यादा अंदर की ओर चले जाते हैं तो आप पीछे से अपने आते हुए आक्रमण को रोक पाने में नाकामयाब रहते हैं। तो जो प्रतिद्वंदी अपनी रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं वह पूरे तरीके से कोर्ट पर पूरा नियंत्रण कर लेते हैं, और यही गलती उनके लिए आत्मघाती सिद्ध हुई। फिलहाल इस गलती से दुरुस्त होने के लिए उनको टाइम आउट लिया। टाइम आउट लेने के बाद उनके प्रशिक्षक उनको बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। अब देखना यह है कि क्या आंध्र प्रदेश की टीम उत्तर प्रदेश पर कुछ प्रभावशाली अपनी रणनीति का प्रयोग करेगी। जिस तरीके से लग रहा है अपनी वापसी तो बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश कर रही है आंध्र प्रदेश, मगर 6 अंक से अभी भी फिलहाल पिछड़ रही है और 3.5 मिनट शेष हैं, और यही बहुत विशेष है। 38 अंक हो गए हैं फिलहाल उत्तर प्रदेश के। Each point that Uttar Pradesh score at this time will feel that much more weighty, that much more heavier to Team Andhra Pradesh, because the lead starts to look insurmountable after a while. अब यहाँ पर कुलतार फिलहाल अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा पूरा प्रतीत हो रहा है वह जानबूझकर इतना समय व्यतीत कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हम लीड पर हैं, तो अगर 1 अंक वह गवा भी देंगे तो भी उनको कोई नुकसान नहीं होगा। फिलहाल तो यहाँ पर लग नहीं रहा, 1 अंक उन्होंने अर्जित कर लिया है, तो 39-31 का स्कोर हो गया है। 8 point the difference. Once again, Venkatesh going for the thigh hold. Perhaps should have gone for the ankle hold. That seems to be his strength. And hence, 1 point further ahead. Team Uttar Pradesh moves. Still depending on G. Lakshman, who hasn't quite exhibited the kind of form that he exhibited in the first half. And he's definitely tiring down. His body language is telling us that. बिल्कुल, मात्र 2 मिनट 3 सेकंड का खेल शेष है, और अब ये बहुत ज्यादा विशेष है दर्पण, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश जो है अग्रसर हो चुका है विजय श्री की ओर। तो देखना होगा क्या अपने इस विजय रथ को आगे पूर्ण अंजाम तक लेकर जाएंगे। फिलहाल अंशुल कैप्टन उत्तर प्रदेश के रेड डालने के लिए पूरी तरह से तैयार, और ये देखिएगा तारीफ करनी होगी हमारे कैमरामैन की भी, कितने लॉन्ग शॉट से लेकर के आपको ड्रोन के शॉट तक दिखा रहे हैं। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर दृश्य जो कि खेल की रोचकता को और अधिक बढ़ाता है। फिलहाल लक्ष्मण रेड डालने के लिए आंध्र प्रदेश की ओर से 32-40 का स्कोर। फिलहाल लक्ष्मण तेजी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ये देखिएगा फेंट अटैक करने की कोशिश थी यहां पर, मगर उस निखिल उस फेंट अटैक को पूर्ण अंजाम तक ले जा नहीं पाए। भ्रमित करना चाह रहे थे अपने प्रतिद्वंदी को, मगर वो भ्रमित हुए नहीं, और वो बड़ी सूझबूझ के साथ सहजता से टच करके अपने पाले में चले गए। फिलहाल कुलतार रेड डालते हुए 53-40, and hence you would see him take his time. Ample time Uttar Pradesh have. Andhra Pradesh, not so much. They are hoping for a miracle from now on, and this is not how the miracles will come. बिल्कुल, इस तरीके से लगता तो नहीं है कि कोई चमत्कार हो जाएगा, पर अंतिम 36 सेकंड शेष हैं, और इन 36 सेकंड्स में चमत्कार तो खैर नामुमकिन है, मगर हाँ फिलहाल हम ये जरूर कह सकते हैं कि दोनों ही टीमों की तारीफ करनी होगी। प्रयास दोनों ने बहुत अच्छे किए हैं, मगर उत्तर प्रदेश ने अपने अथक प्रयासों से यहाँ पर जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं और विजय रथ को आगे लेकर आए हैं। And still, Captain Anshul's body language exudes determination and dutifulness. And now they've sent one of the defenders to raid. It is Venkateshwara Reddy, who specializes as the left corner. Over here, he has gone for a raid because you know that the game's almost done. Comes back with an empty raid, and hence the point goes to Uttar Pradesh. Remember, every raid has to be productive. And now Nikhil, beg your pardon, that's Abhishek,
who'll get a chance from Team Uttar Pradesh. So that tells you that the game is done from both teams' perspective. They're just trying out things now. And Abhishek looks like is also going to return with an empty raid. बिल्कुल, और अंतिम समय व्यतीत कर रहे हैं। ये देखिएगा, लास्ट एक अंक गवा जरूर दिया, मगर आप ये देखिए 10 अंकों से बढ़त बनाते हुए इस मैच को पूर्णतः अपनी गिरफ्त में ले लिया उत्तर प्रदेश ने, और विजय श्री की ओर अग्रसर हुए, एक दूसरे के साथ गले लगते हुए। और स्वाभाविक है अपनी इस जीत का जश्न मनाना भी। Absolutely all smiles because they're one step closer to a semi-final berth. Remember, they won their first game against Dadra Nagar Haveli and Daman and Diu. And now they have defeated Andhra Pradesh by 43-34. You can see how close the first half was, but in the second half, Uttar Pradesh surged ahead like they